Hello everyone. So what we did in the last class? In the last class, we did the basic revision of what is electromagnetic induction, self-inductance, Lenz's law, mutual inductance, coefficient of coupling. That was just a revision. You already did that thing in your schooling. Now today we will start with the Helmholtz equations, and these are very important equations from your examination point of view. तो इसको ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है. Now Helmholtz equations होती क्या है? ये basically equations होती हैं of growth and decay of current in different circuits. कौन कौन से सर्किट्स होते हैं? हम यहाँ पर उन सर्किट्स की बात करेंगे which are containing कैपेसिटर, इंडक्टर एंड रेजिस्टर. तो हमारे पास डिफरेंट सर्किट्स होंगे. एक सर्किट होगा जिसमें हमारे पास सिर्फ इंडक्टर और रेजिस्टर है. एक सर्किट हमारे पास ऐसा होगा जिसमें हमारे पास जो है रेजिस्टर है और कैपेसिटर है. एक सर्किट हमारे पास ऐसा होगा जिसमें हमारे पास कैपेसिटर है और इंडक्टर है. और एक ऐसा सर्किट भी होगा जिसमें LCR तीनों चीजें होंगी, इंडक्टर भी, कैपेसिटर भी, रेजिस्टर भी. इन सारे सर्किट्स को हम स्टडी करेंगे और हम क्या निकालेंगे? वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट. तो ये जो इक्वेशंस हैं, दीज रिजल्ट्स, दीज आर बेसिकली नोन एज द हेल्महोल्ट्ज इक्वेशंस. तो वन बाय वन जो है अब हम डिफरेंट सर्किट्स जो है उनको स्टडी करेंगे. यहाँ पर तुम देख भी सकते हो. We shall now turn to the study of our main topic of growth and decay of current in different circuits containing any two or all of the three of resistance, capacitance and inductance. And the results so obtained are known as the Helmholtz equations. ठीक है, तो सबसे पहले we will start with the growth and decay of current in LR circuit, and this is very important from your examinations point of view. तो इसको ध्यान से सुनना और समझना है. ये हमारे पास सर्किट है which is given by equation 4.4. इस सर्किट में we have an inductor having the inductance capital L and we have a resistance having the resistance capital R. And ये जो हमारा सर्किट है, this is connected in series with the cell of EMF capital E through a tapping key K. ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है that we are considering a circuit containing an inductance L and a resistance R connected in series with a cell of EMF capital E through a tapping key K. Now what happens? First we'll study the growth of current and then we'll study the decay of current. तो growth of current study करने के लिए first what we have to do? We have to connect the circuit. So for connecting the circuit, we have to press the key K. जैसे ही हमने टैपिंग की K को प्रेस किया, हमारे पास ये जो सर्किट है क्लोज्ड सर्किट हो गया, जिस वजह से करंट जो है it will grow in the circuit in this direction from positive to negative. So when the key is suddenly pressed, there is a growth of current from 0 to the maximum value. Initially current was 0. When we tap the key, then current starts increasing and the maximum value of current is, let's say, I naught. तो अब क्या होगा? when there is growth of current, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो भी इंक्रीज होगा. अब मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस इट इज चेंजिंग विद टाइम. तो बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड EMF इज इंड्यूस्ड. EMF है तो कहाँ पर इंड्यूस होगी? EMF इज इंड्यूस्ड अक्रॉस द इंडक्टर और इंडक्टेंस कैपिटल L. ठीक है, बिकॉज ऑफ द टैपिंग ऑफ की there is a growth of current in within the circuit, due to which an EMF is induced across the inductor L. ठीक है, this is known as electromagnetic induction. Let's say I be the current at any instant of time during the growth. ठीक है, हमने एक particular time पे ले लिया. Let's say I is the current. तो what is di upon dt? Di upon dt will nothing be the rate of growth of current. इसको ध्यान से समझना, ये derivations important है from examinations point of view, बस उतने ही simple है. ठीक है, एक समझ में आ गया तो धीरे धीरे करके सारे सर्किट समझ में आ जाएंगे. तो इसमें हमने क्या किया? I जो है हमने करंट लिया at any instant, तो di upon dt क्या हो गया? रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट. और हमें क्या पता है? इंड्यूस्ड EMF हमारा क्या होता है? across the inductor induced EMF क्या होगा? E is equal to minus L di upon dt.
ठीक है, ये हमें रिलेशन ऑलरेडी पता है फ्रॉम दी Faraday law of electromagnetic induction, that E is equal to minus L di upon dt. Now the potential drop across the resistance due to this current. अब potential drop resistance के across क्या होगा? Ohm's law क्या होता है? V is equal to IR. तो I अगर current है तो voltage क्या हो गई या potential क्या हो गई? IR. हमें क्या करना है, जैसे हम इस सर्किट में करेंगे ऐसे हम सारे सर्किट में करेंगे. टोटल ईएमएफ हमारे पास कितनी है? कैपिटल ई. तो कैपिटल ई हमारे पास क्या हो गई? कैपिटल ई, देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है टोटल ईएमएफ कैपिटल ई इज इक्वल टू दी EMF, or you can say potential across the inductor plus potential across the resistor. This will give us the total EMF of the circuit. ठीक है, अब यहाँ पर substitute the value of EL and ER. हमने E ही क्यों निकाला? क्योंकि हमें इस सर्किट में क्या चीज नोन है? फिलहाल हमें E नोन है, L नोन है कि हम जो इंडक्टर ले रहे हैं उसकी कितनी इंडक्टेंस है और जो रेजिस्टेंस ले रहे हैं उसकी कितनी रेजिस्टेंस है. ठीक है, तो E is equal to EL plus ER. Now substitute the value of EL. EL हमारा क्या है? EL हमारा क्या है? This is minus L di upon dt. ER हमारा है IR. ठीक है, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लिख रहे हैं, देखो हमारी यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये हमारी इक्वेशन बन गई. E is equal to EL plus ER. ER हमारा क्या है? ER is equal to RI. EL हमारा क्या है? L di upon dt. अब इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा E माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर आई. ये माइनस साइन यहाँ पर क्यों आया है? बिकॉज जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपोज करती है ईएमएफ ऑफ दी सेल, इसलिए अब यहाँ पर हमारा नेगेटिव साइन आ गया. सिंपल ना, हर एक सर्किट में हम इसी तरीके से इक्वेशंस लिखेंगे. जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ईएमएफ होगी वो हमारी आई आर हो गई. ठीक है, जो इंडक्टर के अक्रॉस होगी EL, उसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे L di अपॉन dt. ठीक है, फिर जब वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा इट विल बिकम माइनस, और ये हमारा होना भी चाहिए बिकॉज इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसकी डायरेक्शन और कैपिटल E की डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए. बिकॉज हमारा लेंज लॉ क्या कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इट अपोजेस द चेंज व्हिच प्रोड्यूसेस इट. ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. तो कैपिटल E हमारे पास क्या आ गया? इट बिकम्स आर आई प्लस एल डी आई अपॉन डी टी, जो हमने यहाँ से यहाँ पे तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो इस स्टेप को. ना आफ्टर नोइंग दिस, व्हेन करंट इंक्रीजेस रीचेस टू द मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट, जब करंट हमारा 0 से मैक्सिमम हो गया आई नॉट, जब करंट मैक्सिमम हो गया दैट मीन्स हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो 0 हो गया. क्यों 0 होगा? क्योंकि जब करंट मैक्सिमम हो गया इट बिकम्स कांस्टेंट. जब करंट हमारा मैक्सिमम है तो वो क्या हो गया? हमारा कांस्टेंट हो गया. दैट मींस I को वी कैन रिप्लेस बाय I नॉट. इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारी EL जो है, यहाँ पर जो हमारा ये EL है ये क्या है? L di upon dt है. When I is equal to I naught, ये क्या हो जाएगा? L di naught upon dt. So this is the induced EMF when current reaches to the maximum value I naught. I naught is a constant. यहाँ पे करंट मैक्सिमम हो गया, कांस्टेंट हो गया. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारी 0 हो गई. तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर. ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करो. When I is equal to I naught, capital E is equal to R. I को हम रिप्लेस कर देंगे बाय I naught प्लस ये जो सेकंड टर्म है ये हमारी 0 हो जाएगी at I is equal to I naught. Since when current reaches to the maximum value I naught, it becomes constant. I naught is a constant value and the differentiation of constant is nothing but 0. So we get E is equal to R I naught when I is equal to I naught. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ कैपिटल E इन दिस इक्वेशन. सो नाउ इक्वेशन 4.7 रिड्यूसेस टू E को हमने लिख दिया R I नॉट, ये हमारा एज इट इज आ गया R I, ये हमारा है L di अपॉन dt. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है हमने EMF को करंट की टर्म्स में क्यों लिखा? क्योंकि फाइनली हमें निकालना क्या है? फाइनली हमें इक्वेशन निकालनी है ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट. तो हमें जो कंप्लीट इक्वेशन है वो करंट के टर्म्स में हमें चाहिए, तभी हम करंट की एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं.
अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आई के टर्म्स में है, तो उसका जो सोल्यूशन होगा वो हमें क्या देगा, करंट देगा ना। तो इसलिए हमने ईएमएफ की हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से एक ऐसी इक्वेशन लिखी विच इज प्योरली अ फंक्शन ऑफ करंट। ठीक है, करंट के ऊपर है अब ये पूरी एक्सप्रेशन, एल और आर हमारे कांस्टेंट है, दिस करंट इज चेंजिंग विद टाइम। Now take Ri to the left hand side, तो ये हो गया R into I naught minus I equal to L di upon dt, और what you can write, करंट वाली एक्सप्रेशंस को एक तरफ ले जाओ, टाइम वाली एक्सप्रेशंस को एक तरफ ले जाओ, तो ये हो गया डी आई अपॉन आई नॉट माइनस आई इज इक्वल टू आर अपॉन एल इंटू डी टी। ना इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेट करने से पहले इसमें एक स्टेप और करना है तुम्हें, जो तुम याद रखोगे जब ये डेरिवेशन करना है, उसमें याद रखना है। कोशिश करना एक बार इस डेरिवेशन को खुद भी अपने हाथों से सॉल्व करके देखना, तभी ये ज्यादा अच्छे से तुम लोग समझ पाओगे। दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स बाय -1 एंड देन इंटीग्रेट इट। ना लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, -1 अपॉन आई नॉट माइनस आई इंटू डी आई। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है, तो 1 अपॉन आई नॉट माइनस आई का इंटीग्रेशन होगा लॉग आई नॉट माइनस आई, यहाँ पे log टू द बेस e है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल लॉगरिथम, log टू द बेस e है, ln है, नेचुरल लॉगरिथम, तो log टू द बेस e इंटू आई नॉट माइनस आई, और आई नॉट माइनस आई किस, यहाँ पे मैं यहाँ पे तुम्हें लिख के दे देती हूँ, इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन, इसको ध्यान रखना, 1 अपॉन ए एक्स, ये तुम ऑलरेडी अपना इंटीग्रेशन जब मैथ्स में पढ़ा है तुमने 12th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में, वहां पे ऑलरेडी पढ़ा है कि इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स का, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए नेचुरल लॉग ln लिख लो या log टू द बेस e लिख लो, एक ही बात है, ब्रैकेट में ax प्लस b, इसको ध्यान रखना है। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से यू कैन इंटीग्रेट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन। देखो यहाँ पे 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, बी हमारा हो गया आई नॉट, ए हमारा हो गया -1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 अपॉन ए हमारा क्या है -1 into log of या ln of log to the base e या ln of ax माइनस आई है और b हमारा आई नॉट है, तो वी कैन राइट ln of आई नॉट माइनस आई। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी दिस माइनस साइन इज ऑलरेडी हेयर, सो दिस माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, और हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई log टू द बेस e और ln of I naught minus I, and this is equal to dt का इंटीग्रेशन सबको पता है -r upon n into t plus c, this c is the constant of integration। अब इस c की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, c की वैल्यू हम निकालेंगे कंसीडरिंग जब हमारा t is equal to 0 है, मतलब एट द वेरी स्टार्ट, उस टाइम पे हमारा जो करंट है वो 0 है, फिर जैसे ही हमने की को प्रेस किया करंट जो है इट विल नाउ इंक्रीज फ्रॉम 0 टू द मैक्सिमम वैल्यू, सो एट t इक्वल टू 0 आवर करंट इज 0। तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, t को 0 पुट करो, एट t इक्वल टू 0 i इज 0, तो हमारे पास ये इक्वेशन रिड्यूस हो गई किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, एट t इक्वल टू 0 c is equal to log to the base e of I naught। Now substitute this value of constant of integration in this equation, it becomes log to the base e I naught minus I is equal to minus r upon l into t plus log to the base e of I naught। Now take this
log to the base e to the left hand side, तो ये हो गया log to the base e of I naught minus I upon I naught is equal to minus R upon L into T. I hope ये वाला स्टेप सबको क्लियर है. log A minus log B होता है log A upon B. ध्यान से सुनो, अगर ये मेरा A है, ये मेरा B है, log A minus log B होता है log A upon B. तो हमारे पास ये आ गया. अब हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. दैट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I. तो वो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ से टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग क्या होगा? I naught minus I upon I naught. This is equal to exponential of minus R upon L into T. Or you can write this left hand side as 1 minus I upon I naught is equal to e raised to power minus R upon L into T. इस इक्वेशन को हम फर्दर लिख सकते हैं. I upon I naught is equal to 1 minus e raised to power minus R upon L into T, or I is equal to I naught into 1 minus e raised to power minus R upon L into T. So this is the equation of the growth of current in the LR circuit. ठीक है, this is the final equation. और इसको याद रखना है, इसके ऊपर numericals भी आ जाते हैं एग्जाम में. ठीक है, so this is the equation of the growth of current in LR circuit, which is also known as the Helmholtz equation. Now ये जो quantity है capital L upon capital R, this is known as the time constant of the circuit. ठीक है, this is equal to time constant of the circuit, L upon R. कभी न्यूमेरिकल में आ जाए कि find the time constant of the circuit, और तुम्हें L और R given है, तो तुम्हें confuse होने की जरूरत नहीं है. तुम्हें पता है by definition time constant होता है L upon R, so directly substitute L and R and you will get the time constant. Now how to define this time constant? इसको define करने के लिए what we'll say, अगर हमारा time constant small t के equal है, तो हमारी growth of current equation क्या हो जाएगी? यहाँ पर अगर मैं t को पुट कर दूं L upon R, तो ये हमारा हो गया I is equal to I naught into 1 minus e raised to power minus 1, which is equal to I naught into 1 minus 1 upon e. तो 1 अपॉन ई हमारा क्या होता है? सबको पता है एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है 2.718, तो 1 अपॉन ई हो गया 0.368. तो आई हमारा क्या हो गया? आई नॉट इंटू 1 माइनस 0.368 विच इज इक्वल टू 0.632 आई नॉट. तो टाइम कांस्टेंट L upon R of a LR circuit can be defined as the time taken by the current to grow from 0 to 0.632 times the steady maximum value of current in the circuit. मतलब क्या है? टाइम कांस्टेंट L upon R LR सर्किट का वो टाइम होता है जब करंट हमारा ग्रो करता है फ्रॉम 0 टू दी 0.632 times the steady maximum value of current in the circuit. Maximum value I naught है, उसका 0.632 times जब करंट हमारा इंक्रीज हो जाता है, तो वो जो टाइम लेता है सर्किट, उस टाइम को हम लोग कहते हैं टाइम कांस्टेंट. So this is how we can define time constant. बस ये हमने डिफाइन करने के लिए किया है, दैट्स इट. और ये हम बाकी हर सर्किट में रिपीट करेंगे. अभी तो हम LR कर रहे हैं, फिर RC करेंगे, सब में इस टाइप की चीजें हम रिपीट करेंगे. तो वहां पे फिर जब धीरे धीरे करोगे तो चीजें बहुत सिंपल हो जाएंगी. Now what we'll do, we'll now plot the growth of current in an LR circuit. तो growth of current को हम पहले प्लॉट करेंगे. तो हम y एक्सिस पे लेंगे करंट और हम x एक्सिस पे लेंगे टाइम. Here we are plotting current with respect to time in an LR circuit. देखो, और इक्वेशन क्या है जिसको हमें प्लॉट करना है? This is the equation given by 4.10. इस इक्वेशन को एक बार ध्यान से देख लो. अब मैं प्लॉटिंग समझाऊंगी इसकी. I is equal to I naught into 1 minus e raised to power minus R upon L into T. अब इसमें देखो at the very start, that means when t is equal to 0, हमें प्लॉट करना है ना इसको. तो जब t हमारा 0 है तब करंट क्या होगा? t को अगर मैं 0 पुट कर रही हूँ तो e raised to power 0 1 होता है,
तो 1 minus 1 is 0. So at t equal to 0, current is 0. Sorry, at t equal to 0, our current is 0. That means जो हमारा करंट की प्लॉटिंग है वो ओरिजिन से शुरू होगी. नेक्स्ट व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी, t जब इंफिनिटी की तरफ जाएगा, ये क्या है, e रेज़ टू पावर माइनस इंफिनिटी हो गया, e रेज़ टू पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है. सो व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी, करंट बिकम्स मैक्सिमम, करंट टेंड्स टू I नॉट. e रेज़ टू पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है ना, तो यहाँ पे हम इसको अब प्लॉट करेंगे. हमने एक मिनिमम वैल्यू दे दी 0 और मैक्सिमम वैल्यू दे दी I नॉट. ठीक है, कर्व हमारा क्या है, इक्वेशन हमारी एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग इक्वेशन है. ठीक है, ये देखो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पे नेगेटिव साइन है ना, तो और यहाँ पे 1 माइनस है. इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा करंट हमारा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है. तो टाइम एट t इक्वल टू 0 हमने ऑलरेडी देखा करंट हमारा 0 है. जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है करंट इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, एंड व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी I टेंड्स टू I नॉट. ठीक है, तो ये जो हमने इक्वेशन को डिराइव किया, इसको हमने यहाँ पर प्लॉट भी किया. ठीक है, यहाँ पर ये चीज देख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है द ग्राफ बिटवीन द करंट एंड टाइम ऑफ इट्स ग्रोथ इज शोन इन दिस फिगर. इक्वेशन 4.10 shows that the current will require infinite time to reach to its maximum value I naught. ठीक है, जब t tends to infinity होगा तब I tends to I naught होगा. That means current जो है it requires infinite time to reach to its maximum value I naught. ठीक है, now after studying the equation of growth of current, we will now proceed with the decay of current. मतलब क्या है, अब हमें decay of current की equation निकालनी है. current decrease कब होगा, current decrease तब होगा, सबसे पहले क्या था, हमारे पास एक सर्किट है which is connected, L और R है, they are connected in series with a battery. ठीक है, having EMF capital E and it is connected to a tapping key K. जैसे ही हमने की को टैप किया, करंट जो है डिक्रीजेस फ्रॉम 0 टू द मैक्सिमम वैल्यू. नाउ देयर इज अ ग्रोथ ऑफ करंट. अब हमें डिके ऑफ करंट निकालना है. तो डिके ऑफ करंट निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, अब हम क्या करेंगे, अब हम की को हटा देंगे. तो अब क्या होगा, हमारा करंट इन द सर्किट जो है वो स्विच ऑफ हो गया. नाउ करंट विल डिके, इट विल डिके फ्रॉम द मैक्सिमम टू द 0 वैल्यू. ठीक है, now when the current in the circuit containing an inductance and a resistance is switched off, अब क्या होगा, करंट जो है now it will decrease from maximum to 0. करंट डिक्रीज हो रहा है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी डिक्रीज होगा. दैट मींस एन EMF is induced in the circuit. Let's say EMF induced हमारा क्या होता है, minus L di/dt. ठीक है, which represents the Now, अब ये क्या होगा, ये जो EMF इंड्यूस हुआ है, दिस विल अपोज द cause which produces it. किसने इसको प्रोड्यूस किया था, the decay of current. तो it will slow down the rate of decay of current. ये ऑलरेडी मैंने बताया था when we were discussing self inductance. ठीक है, तो अब हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने ग्रोथ ऑफ करंट में किया था, उसी तरीके से हम यहाँ पर अब इक्वेशन लिखेंगे. ठीक है, तो इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो EL है, प्लस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो ER है, एंड दैट इज इक्वल टू, अब हमारा सर्किट जो है ओपन है, अब हमारे पास कोई सोर्स ऑफ EMF नहीं है, तो EL प्लस ER इज इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू कैपिटल E. कैपिटल E तब होता है जब सर्किट को हमने क्लोज कर दिया. ठीक है, तो हमारी जो बैटरी है वो अब कनेक्ट हो जाएगी टू द सर्किट. यहाँ पर हमने सर्किट को ओपन कर दिया, सो देयर इज नो बैटरी कनेक्टेड टू इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस. ठीक है, देयर इज अ ग्रोथ, देयर इज अ डिके ऑफ करंट नाउ. तो हमारे पास ये इक्वेशन हो गई. ठीक है, EL हमारा क्या है, EL हमारा है L इंटू, वी आर राइटिंग डाउन द मैग्नीट्यूड्स. EL हमारा क्या है, L इंटू, सॉरी, EL हमारा हो गया L इंटू DI/dt. ठीक है, और हमारा ER क्या हो गया, ER is nothing but the product of current into resistance using the very famous Ohm's law, and this is nothing but equal to 0. So from this we'll get this
इक्वेशन. दिस इज हाउ वी गेट दिस इक्वेशन. तो अब हमारे पास क्या आ गया, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू आई आर. अब हम क्या करेंगे, करंट की टर्म्स को एक तरफ रखेंगे, टाइम की टर्म्स को एक तरफ, जैसे हमने ग्रोथ ऑफ करंट में करा था. ठीक है. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द equation for the decay of current. So what we'll do now, we'll integrate this equation. ठीक है. 1 upon I की इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचुरल लॉग I which is equal to, यहाँ हमारे पास क्या आया देखो, इसको करेक्ट करो सब अपनी बुक में. यहाँ नेगेटिव साइन है. ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन हटा दिया इन्होंने, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा. तो इसका इंटीग्रेशन हो गया natural log I, this is equal to minus r upon l into t plus c, where c is the constant of integration. अब यहाँ पर भी constant of integration को हम उसी तरीके से निकालेंगे जैसे पहले निकाला था, at t equal to 0. ग्रोथ ऑफ करंट में t equal to 0 पे करंट हमारा 0 था. अब हम डिके ऑफ करंट कर रहे हैं, करंट डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम मैक्सिमम टू दी 0 वैल्यू. तो जैसे ही हमने इसको स्टडी करना शुरू किया, एट t equal to 0 हमारा करंट मैक्सिमम था. उसके बाद वो डिके होना शुरू हुआ विद टाइम एंड देन इट गोज टू 0. So at t equal to 0, current is maximum. Let it be I naught. So substitute this value in this equation. So at t equal to 0, we have C is equal to log to the base E into I naught. At t equal to 0, this term becomes 0. So now substitute this value of C in this equation 4.11. So now what we get? We get log to the base E of I is equal to minus R upon L into T plus log to the base E I naught. अब उसी तरीके से करना, करंट की इक्वेशंस को एक तरफ ले जाओ. log to the base I minus log to the base E of I naught is equal to minus R upon L into T. log A minus log B होता है log A upon B. So we get this equation from this equation. Log to the base E into I upon I naught is equal to minus R upon L into T. I hope यहाँ पे सारे स्टेप्स तुमको क्लियर है. मैं एक एक करके सारे स्टेप्स समझा रही हूँ. अगर कोई भी डाउट होती है then I'll take these doubts in the doubt class. इनको मार्क करके रख लेना जहां पर भी अगर तुम्हें डाउट आ रही है थोड़ी सी भी. Now how to solve this equation? Now take the exponential on both sides. Exponential का log होता है I upon I naught. So this is equal to e raised to power minus R upon L into T. So from this we get I is equal to I naught e raised to power minus R upon L into T. So this is the final equation representing the decay of current in an LR circuit. देखो दोनों equations में क्या फर्क है, ग्रोथ में और डिके में एक 1 का फर्क है. ठीक है, इसका फर्क क्या, ग्रोथ में करंट जो है इट इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, डिके ऑफ करंट में करंट इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली. ठीक है, इस ग्राफ को अब हम प्लॉट कर, इस इक्वेशन को अब हम प्लॉट करेंगे हमारे इस ग्राफ में. ठीक है, डिके ऑफ करंट में. तो एट t इक्वल टू 0 ये हमारे पास इक्वेशन है. जब हमारा t 0 है, at t equal to 0 e raised to power 0 क्या होता है 1. तो at t equal to 0 current is maximum. जब t हमारा 0 है, I क्या है हमारा equal to I naught है. When t equal to 0, we can see from the equation 4.12, current becomes maximum equal to I naught. ठीक है, एंड व्हाट हैपेंस व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी? जब t टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, e रेज़्ड टू पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है. तो व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी हमारा जो करंट है इट विल टेंड टू 0. सो करंट जो है इट इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली फ्रॉम I नॉट टू 0. वही यहाँ पे हमने प्लॉट किया है, ये हमने एक्सपोनेंशियल कर्व दिखाया है. एट t equal to 0 current is maximum I naught, and as t tends to infinity current is decreasing towards 0. So this is how we can plot growth and decay of current in an LR circuit, and this plot is very simple, and I know this derivation is also very simple. सिर्फ एक इक्वेशन का हमने यूज किया है. क्या इक्वेशन हमने यूज करी है? दिस वन. ठीक है, इस इक्वेशन का यूज करा है और सिंपल ये डेरिवेशन हमारा हो गया है. अब नाउ वी विल सी हाउ टू डिफाइन टाइम कांस्टेंट यूजिंग द इक्वेशन ऑफ डिके ऑफ करंट. L upon R हमारा क्या है? दिस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट. और L
अपॉन आर अगर हमारा टी के इक्वल है तो ये इक्वेशन क्या हो गई, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर -1 बिकॉज टी इज इक्वल टू एल अपॉन आर. So r upon L into L upon R becomes 1. So this is equal to 0.368 I naught because 1 upon E हमारा होता है 0.368. तो यहाँ से we can define time constant of an LR circuit as the time taken by the current now to fall from the maximum I naught to the 0.368 of its maximum value in the circuit. तो टाइम कांस्टेंट LR का वो टाइम होता है जब करंट हमारा डिक्रीज होता है फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू दी 0.368 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट. ठीक है, आई होप यहाँ पे सबको क्लियर है. अब यहाँ पर हमारा ये डेरिवेशन खत्म होता है. We have already derived the two Helmholtz equations of an LR circuit. One is the growth of current and one is the decay of current. Exam में ये आ सकता है and this is very very important and it is also very very simple. अब इसमें एक और चीज मैं एडिशन बताऊंगी. ये जो पैराग्राफ है ये, ठीक है, इस पैराग्राफ को समझना. इसके ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ सकता है. ये क्या कहता है, ये कहता है it is clear from equation 4.12. This is the equation of decay of current they are talking about. Equation 4.12 से what we see, मैं देखती हूँ, हाँ यहाँ पे visible है equation भी, तो you can relate this paragraph with this equation. If R is very high, if capital R is very high, then time constant L upon R is small. टाइम कांस्टेंट क्या है, L अपॉन आर है. R जो है डिनोमिनेटर में है. अगर रेजिस्टेंस को हम सर्किट में बहुत ज्यादा लेते हैं तो टाइम कांस्टेंट जो है वो बहुत कम हो जाएगा. टाइम कांस्टेंट अगर हमारा कम होगा दैट मींस करंट डिकेज रैपिडली. देखो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है ये. ठीक है, R जो है हमारा न्यूमरेटर में है एक्सपोनेंशियल के, तो R को अगर हम बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है करंट जो है वो जल्दी जल्दी डिके होगा. Now on breaking the circuit suddenly, the air gap in the key produces an infinite resistance. इसमें क्या है, decay of current निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एकदम से की को हटा देते हैं, सर्किट को हम ओपन कर देते हैं, एकदम से की को हटा देते हैं. तो सर्किट को हमने सडनली ब्रेक कर दिया. सर्किट को सडनली ब्रेक करने की वजह से क्या होता है, जो हमारे पास ये टैपिंग की है ना, इस तरीके से टैपिंग की होती है. ठीक है, पहले तो ये बंद थी हमारी, मैंने ज्यादा बड़ी बना दी, 1 सेकेंड. ये हमारी टैपिंग की है ना, ग्रोथ ऑफ करंट के टाइम पे हमने इस टैपिंग की को बंद कर दिया था ऐसे. ठीक है, डिके ऑफ करंट के लिए हमने एकदम से इस की को हटा दिया. एकदम से हटाने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो ये एयर गैप बना है ना की में, ये प्रोड्यूस करता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. इसका मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई. रेजिस्टेंस जैसे ही बहुत ज्यादा हो जाएगी, हमारा जो डिके ऑफ करंट है वो रैपिड हो जाएगा. ठीक है, रैपिड डिके की वजह से एकदम से करंट चेंज हो रहा है, तो जैसे एकदम से करंट चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, तो इसमें जो है लार्ज इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी. इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है एकदम से बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी बिकॉज करंट का जो रेट ऑफ चेंज है वो बहुत फास्ट है. करंट इज डिकेइंग एट अ वेरी फास्ट रेट बिकॉज ऑफ द एयर गैप जो प्रोड्यूस हुआ है की में. क्यों प्रोड्यूस हुआ है एयर गैप, बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग द सर्किट सडनली. सर्किट को हमने सडनली ब्रेक किया जिस वजह से की में एक एयर गैप प्रोड्यूस हो गया जो प्रोड्यूस करता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. और इस इक्वेशन में हमने देखा है अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी तो करंट जो है वो डिके करेगा रैपिडली. करंट डिके किया रैपिडली जिस वजह से लार्ज इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी. इतनी ज्यादा एकदम से ईएमएफ प्रोड्यूस होने से क्या हो जाता है, स्पार्किंग हो जाती है क्रॉस द एयर गैप. यहाँ पर अब तुमने आई डोंट नो तुमने 12th में अगर इस टाइप के एक्सपेरिमेंट करे हैं जहाँ टैपिंग की का यूज किया है, तो वहां तुम अगर देखोगे तो जैसे ही तुम सर्किट को टैप उसमें टैपिंग की को टैप करते हो ना, तो वहां पे तुम्हें एक सडन स्पार्क नजर आता है. इसको तुम यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हो. जैसे हम जो टैपिंग की हमारी सर्किट से कनेक्टेड होती है, हम उसको टैप करते रहते हैं. तुम यूट्यूब पे भी चेक करके देख लेना टैपिंग की किस तरीके से दिखती है हमारी.
तो वहां पे एक स्पार्कलिंग प्रोड्यूस होती है। तो ये पैराग्राफ क्या है, ये हमें वो रीजन दे रहा है स्पार्किंग प्रोड्यूस क्यों होती है। तो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई देयर इज अ स्पार्किंग अक्रॉस द एयर गैप इन अ सर्किट। तो वहां पे तुम ये आंसर दे सकते हो कि हम जैसे ही सर्किट को सडनली ब्रेक करते हैं, एयर गैप प्रोड्यूस हो जाता है की के पास, जो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, और इस वजह से देयर इज अ रैपिड डिके इन करंट बिकॉज ऑफ दैट इक्वेशन। ये इक्वेशन भी लिख के दिखा सकते हो। और एकदम से रैपिड डिके जब होता है करंट का, तो इस वजह से लार्ज ईएमएफ प्रोड्यूस होती है which causes the sparking across the air gap। तो इस स्पार्किंग को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। अब ये देखो, ये स्पार्किंग क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। अब रेजिस्टेंस जो है, जो इतनी ज्यादा है, उसको हम कैसे बैलेंस करें। इसके साथ डिनोमिनेटर में क्या इंडक्टर है, अगर मैं इंडक्टर को भी बहुत बढ़ा दूं तो R अपॉन एल, बढ़ी हुई वैल्यूज जो है आपस में कट जाएंगी। तो इसका मतलब जो हमारा L अपॉन आर है, जो टाइम कांस्टेंट है, L अपॉन आर जो है हमारा, वो जो है इतना स्मॉल नहीं रहेगा। नाउ टू अवॉइड, इसको यहाँ पे पढ़ लो फिर समझ में आएगा। टू अवॉइड स्पार्किंग व्हाट वी कैन डू, द इंडक्टेंस L इज मेड लार्ज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स सो दैट L अपॉन आर मे नॉट बिकम वेरी स्मॉल। L अपॉन आर हमारा क्या है, L की वैल्यू, R जो है हमारा बहुत ज्यादा अगर हो गया तो ये डिनोमिनेटर में है, तो L अपॉन आर हमारा बहुत कम हो गया। स्पार्किंग हमारी प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ द हाई रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो रेजिस्टेंस जो हमारा हाई हो रहा है, तो एक्सपोनेंशियल जो है उसमें रेजिस्टेंस हमारा न्यूमरेटर में है। तो R की वैल्यू अगर हाई होगी तो हमारी I की वैल्यू जो है वो भी हमारी हाई हो जाएगी। करंट जो है वो डिक्रीज होगा इन अ रैपिड, देयर विल बी अ रैपिड डिक्रीज इन करंट। तो इस R की वैल्यू को हम कम कैसे कर सकते हैं, अगर हम L की वैल्यू को बढ़ा दें। इस वजह से R अपॉन L की रेशियो जो है वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो इस पैराग्राफ का बस यही एक रीजन है समझने का। एग्जाम में इसमें दो क्वेश्चंस बनते हैं, व्हाई देयर इज स्पार्किंग अक्रॉस द एयर गैप, सेकंड हाउ वी कैन अवॉइड द स्पार्किंग अक्रॉस द एयर गैप। ठीक है, तो व्हाई स्पार्किंग इज देयर, ये यहाँ पे दिया है इसका आंसर। ठीक है, हाउ वी कैन अवॉइड स्पार्किंग, ये यहाँ पर दिया है इसका आंसर। ठीक है, ये एग्जाम में कभी कभी आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। ना यहाँ पर हमारा ये डेरिवेशन हुआ, इसमें मैं ये एक एग्जाम्पल है, ये तुम लोगों को इस एग्जाम्पल से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, डेरिवेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। लास्ट में मैं असाइनमेंट भी दूंगी जिसमें मैं तुम्हें इस टाइप के न्यूमेरिकल्स काफी सारे दूंगी, ताकि चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाए। अब इसमें देखो, जब भी एग्जाम में एग्जाम्पल आता है, कोई भी न्यूमेरिकल आता है, उसमें पहले देखो चीजें गिवन क्या है। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, इंडक्टेंस गिवन है, दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट एल आर सर्किट, क्योंकि क्वेश्चन में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है। और हमें क्या गिवन है, हमें जो सेल है उसकी ईएमएफ वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट का मतलब क्या है, डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, इंक्रीज है, अब देखो इंक्रीज है ना, तो वी विल यूज द इक्वेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट। ग्रोथ ऑफ करंट की क्या इक्वेशन आई थी हमारी, ये आई थी, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट, दैट मींस यू हैव टू फाइंड डी आई अपॉन डी टी। तो डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, वन तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, सिर्फ एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन होगा। तो आई नॉट इंटू माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। आर अपॉन एल का डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, माइनस आर अपॉन एल। ठीक है, इस इक्वेशन को ठीक करो बेटा, ये माइनस एल अपॉन आर नहीं है, दिस इज माइनस आर अपॉन एल। आरचांद बुक तो अच्छी है बट इसमें गलतियां थोड़ी ज्यादा होती हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है जब इसको पढ़ो। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन थी, इसको हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, माइनस माइनस साइन प्लस हो गया, तो हमारे पास डी आई अपॉन डी टी आया, आई नॉट इंटू आर अपॉन एल इंटू ई रेज टू पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। हमने ऑलरेडी ये चीज पहले निकाली थी जब हमने ग्रोथ ऑफ करंट का डेरिवेशन किया था। वहां हमारा जब हमने देखा था, जब करंट हमारा मैक्सिमम हो जाता है तो हमारी जो ये ईएमएफ ई है इसकी वैल्यू हो जाती है आई नॉट इंटू आर। ठीक है, तो आई नॉट इंटू आर को वी कैन रिप्लेस बाय कैपिटल ई, सो वी गेट दिस इक्वेशन। तो हमारे पास रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट आ गया। अब हमें क्या निकालना है,
first we have to find the rate of increase of current at the instant of closing the switch. जैसे ही हमने switch को close किया, that means at t equal to 0, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो t equal to 0, हमारा di upon dt आ गया E upon L. E हमें गिवन है 200 वोल्ट्स, L हमें गिवन है 0.5 हेनरी, तो यहाँ से हमें मिल गया di upon dt. एग्जाम में यूनिट्स का ध्यान रखना है. di upon dt की यूनिट क्या होगी? करंट की यूनिट एम्पियर होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो दिस गिव्स 400 एम्पियर पर सेकंड. फर्स्ट आ गया हमारा. सेकंड क्या है? हमें निकालनी है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट एट t इक्वल टू L अपॉन R सेकेंड्स. तो सब्स्टिट्यूट t इक्वल टू L अपॉन R, तो di अपॉन dt क्या हो गया? E अपॉन L इंटू e रेज टू पावर -1. तो E अपॉन L हमारा क्या था? 400. सो 400 अपॉन E. E की वैल्यू क्या होती है? 2.718. सो वी गेट दिस value in the units of ampere per second. Now third, we have to find the steady value of current in the circuit. We have to find the steady value of current in the circuit. वो हम कैसे निकालेंगे? Using this equation we will get the steady का मतलब क्या है? Constant value of current in the circuit. Current constant कब होगा? When it becomes maximum. That means when I is equal to I naught. So we have to find I naught and that is equal to E upon R. E हमें given है 200, R हमें given है 20. So the steady value of current in the circuit comes out to be 10 amperes. ठीक है, यहाँ already given है R की value 20 है, E की value 200 है. तो substitute these values here, so we'll get the steady value of current in the circuit. तो इस तरीके से numericals जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं. ठीक है, so what we have done today we have derived the equation of growth of current and the decay of current in an LR circuit, and we have done one example. Now what we'll do in the next class? In the next class we'll find the growth and decay of current in an RC circuit, जब हमारे पास circuit में resistance और capacitor connected है. This we'll see in the next class.